Deutsch This lernen. call is now being recorded. Yes, danke. So, ich lerne Deutsch. Ich kann Deutsch lernen. आपको बोलना है नेक्स्ट सेंटेंस, I want to learn German. I want. Sir, ich will Ich Deutsch will lernen. Deutsch lernen. Okay. Ich will Deutsch lernen. अगर मैं इसको इंग्लिश वाला बोलूं, आई विल लर्न जर्मन, मैं जर्मन सीखूंगा. Ich werde Deutsch Ich lernen. werde Deutsch lernen. Ich werde Werde Deutsch lernen. Deutsch Lernen. lernen. ओके. अगर आपको बोलना हो, आई हैव लर्न जर्मन, मैंने जर्मन सीख ली है. Ich habe Deutsch gelernt. Ich habe Deutsch gelernt. Ich habe Deutsch Gelernt. gelernt. आपको ये बोलना हो, मैंने देव सर से जर्मन सीख ली है. देव सर के यहां which preposition you will use? Ich lerne Deutsch bei ELS Institute. Okay, perfect. By is perfect. By. और सीख ली है बोलना हो तो ich habe by Ich habe ELS oder by देव सर. bei Deutsch Dev sir. gelernt. Okay. Ich habe by देव सर Deutsch Gelernt. gelernt. हेयर देवकरण सैनी, बाई लगाओगे तो बाई हेरन देवकरण सैनी भी लिख सकते हो आप. देव सर इज ऑल्सो परफेक्ट, नो प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट. आई हैव टू लर्न जर्मन, मुझे जर्मन सीखनी पड़ रही है. आई हैव टू. फिर क्या बोलोगे? आई हैव टू लर्न जर्मन. Ich habe Deutsch lernen. हैव टू और मस्ट एक नहीं होता क्या? हाँ सर. Ich muss Deutsch lernen. Ich muss Yes. Deutsch lernen. Yes. Ich muss Deutsch Deutsch lernen. lernen. Okay. Next. I have come yesterday by car. ये सेंटेंस बोलना आपको. मैं कल कार से आ गया. I have come yesterday by car. सोचो. komme gestern. हम्म. Ich komme gestern mit dem Auto. Mit dem मैं Auto. कल कार से आ गया. आ गया. Ich bin gestern mit dem Auto gekommen. Perfect. Ich bin Gestern gestern mit dem Auto mit dem Auto gekommen. gekommen. सर इसमें मिड डेम auto आगे ला सकते हैं क्या? No, Pepe Schwei will come at the end. As हाँ a ये rule, भी. हाँ right? So this is the perfect place. Mid dem Auto. And gestern time. This is Tekamolo, if you remember. हाँ सर. हाँ सर. Right? So time comes first, then the way, how, and of course Pepe Schwei will come at the end. Very good. Okay. If you say I and my friend, I and my friend are learning German. I and my friend are learning German. Think, don't worry. Sir, ich und mein Freund lernen Deutsch. Perfect. Ich und mein Friend lernen Deutsch. Mein Mein Freund Freund
lernen Deutsch. सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? Ich lerne Deutsch mit meinem Freund. No, नहीं. I am learning German with my friend. Sentence is correct. But मैंने बोला था I and my friend. आप इसको ऐसे कह सकते हो mein Freund und ich lernen Deutsch. Because now subject are two, means plural. So because इसको ऐसे भी बोल सकते हो, but it will be lernen. Lernen. This will be plural, of course. There are two now. Yeah. हाँ सर. Okay. My father is purchasing car for me. NVDA का sentence. My father is purchasing car for me. For नहीं यूज करना, for नहीं यूज करना. Okay. My father is purchasing car for me. Mein Vater kauft Auto. mir einen Auto. Ein Auto, sorry. Ein Auto is correct. या फिर auto is correct. If you want to say a car, of course it is a car. So mein Vater kauft mir. This is then NVDA. Okay, correct. अभी तक के आपके जो भी रिस्पॉन्स आए हैं ऑलमोस्ट करेक्ट ही हैं सारे. A1 के बेस पे आप अगर प्रेजेंट परफेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हो, आप नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव का ध्यान रख पाते हो, एनवीडीए, टेका मोलो, मोडाल वर्ब्स अगर आपके दिमाग में हैं, मैं भी तुरंत क्लिक नहीं करे कभी कभी, लेकिन A1 के बेस पे अगर आप ये कर सकते हैं, कर पा रहे हो, यू आर लर्निंग वेरी गुड जर्मन. ओके, आपको झूठी शाबाशी देने के लिए नहीं, ये कोई सेंटेंस मैंने आपको पहले से बता के नहीं रखे. यू आर एबल टू थिंक या रैशनल, उसका आपको सिस्टम समझ आ रहा है. ओके, चलो कि सिंगुलर प्लूरल आपको याद रहे हैं क्या? जस्ट लेट मी चेक. सिंगुलर प्लूरल, क्लाइडुंग. क्लाइडुंग इसका प्लूरल क्या होगा? दी क्लाइडुंग. ट्राई करो, गलत हो तो टेंशन नहीं लोगे, आराम से. गलत होगा तो क्या है, सीखेंगे. Kleidungen. क्लाइडुंगन. हाँ सर. ओके, परफेक्ट. दिस इज नाइस. प्लूरल विल बी क्लाइडुंगन. प्लूरल फेमिनिन के रूल में या तो एन या ई एन. ओके, एन कब लगता है, ई एन कब लगता है? आपने ई एन लगाया, बट व्हाट इज द रूल? सर अगर ऑलरेडी ई आ रहा है पीछे एंडिंग में तो अपन एन लगा देंगे, और अगर किसी के पीछे आई एन आ रहा है तो एन ई एन लगा देंगे. बिल्कुल सही. अगर पहले से एन आ रहा है, ई आ रहा है तो एन लगेगा, और ई नहीं आ रहा तो ई एन लगेगा. दैट्स राइट. ओके, सेकेंड वर्ड लिखता हूं मैं, डेयर का. डेयर टिश. व्हाट विल बी द प्लूरल? सर डी टिश है. टिश. ई लगेगा सर. ई लगेगा सर. वेरी गुड. दी टिश है. अगर मान लो वर्ड हो डेयर बाउम. बाउम ई आएगा सर. ई आएगा. उमलाउट ई. नहीं सर, उमलाउट ई. उमलाउट भी आएगा. करेक्ट. पहले वो वोवल पे उमलाउट लगेगा. जब उमलाउट की पॉसिबिलिटी होती है तो उमलाउट भी लाता है, और आता किसमें है? फर्स्ट वोवल, जिसमें कि ए ओ यू उस पे, और ई साथ में. दैट्स राइट. नाइस. ओके, नेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल सपोज वर्ड है दस हाउस. कोई देख के तो नहीं बोल रहा है, पन्ना पलटने की आवाज आई? नहीं. ओके, हाउस का प्लूरल बताओ. दस हाउस है सिंगुलर. सर हॉइजर. ईआर लगेगा. हॉइजर. केवल ईआर ही लगेगा क्या? उमलाउट ईआर लगेगा सर. यस.
umlaut umlaut ER. भी लगेगा, umlaut और er. Heuser. D Heuser. यस, गुड. एक दो वर्ड और पूछूंगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज रॉक है, एक वर्ड है डेयर रॉक. स्कर्ट. यस, इसका प्लूरल बताओ. उमलाउट ई. Rock. उमलाउट और ई. हाँ सर. दी रियोके. D Rock. रियोक है. ओके, उमलाउट की पॉसिबिलिटी होती है तो उमलाउट भी लगता है. करेक्ट. ऑल राइट. अगर कोई वर्ड हो दस क्लाइड. दस क्लाइड. प्लूरल. हेलो, ईआर आएगा सर. हाँ, सिर्फ ईआर आएगा. दी Spider. क्लाइडर. यस, दैट्स करेक्ट. दैट्स करेक्ट. इसका रोक की मीनिंग क्या है? क्लाइडर क्या? रोक का मीनिंग रोक का मतलब होता है स्कर्ट. स्कर्ट, स्कर्ट, स्कर्ट्स. क्लाइड का मतलब है क्लॉथ. जनरली एक ही पीस से बना हुआ क्लॉथ हो, जैसे गाउन, उसको क्लाइड बोलते हैं जनरली. ओके, देन सपोज मेरे को आपसे कुछ और वर्ड पूछने हो. ओके, आर्टिकल का कुछ करते हैं. या सिंगुलर प्लूरल. आई एम हैप्पी दैट यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज द रूल्स. नाउ मे बी वी कैन टेक I help the children. I help the children. I help. जल्दबाजी मत करना. Just think and then answer. I help the children. Translate. Sir, ich helfe die Kinder. इश हेल्प है. Die Kinder. Ish दी help. किंडर. डी किंडर. कोई बोल रहा है दी किंडर. बाकी लोग दी एग्री करते हो? किंडर. नहीं सर, एन आएगा सर एंड में. Sir, N and आएगा. I Kinder. एन आएगा. यहाँ ओके, लास्ट में एन लगाता हूं. यहां तो दी आएगा क्या? हाँ सर. डेन. E plus N. नहीं सर, Then. डी आएगा. Sir, कौन Dan बोला? plus N. Dan Kinder. Then will be the right answer. इश हेल्प है den kindern. कौन बोला? den कौन बोला? प्लूरल प्लूरल आएगा. ओके, Dan Kinder. den kindern बोला कौन? किसको याद आया den kindern? जितेंद्र. जितेंद्र. Oh great, very nice, very nice. Because den plus n वाला rule. der, die, das, die, den, die, das, die, dem, Die, den, der, plus n. dem, den plus n. So this is dative plural. So n added in the noun and then den. Okay, good. हेलो Yes. सर, अगर किंडर सिंपली लिखे और डेन प्लस एन कर दे तो? दोबारा बोलो. किंडर तो ऐसे ही ऐसा लिखे और डेन प्लस एन कर दे. यहीं पे कर दो हाँ. तो रॉन्ग होगा, क्योंकि जो n है वो नाउन में लगता है. ओके सर. जो प्लस n है वो नाउन में लगता है, इसी में लगा दोगे तो गलत होगा. दैट्स नॉट द राइट वे. ओके सर. ओके ओके, एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आता हूं मैं. मोमेंट. चेंज द कलर. गुड. ओके, डब्ल्यू वर्ड्स पूछने हैं मुझे. चेक करना है कि आपको डब्ल्यू वर्ड आए कि नहीं आए. सेंटेंस है वाई आर यू लर्निंग जर्मन. वाई आर यू लर्निंग जर्मन. द नॉर्मल सेंटेंस यू आर लर्निंग जर्मन. पहले नॉर्मल बनाओ फिर क्वेश्चन बनाएंगे. यू आर लर्निंग जर्मन. डू लर्न्स्ट डॉइच. Sir, डू लर्न्स्ट. Deutsch. लर्न्स्ट डॉइच. सेकेंड सेंटेंस है वाई आर यू लर्निंग जर्मन. क्वेश्चन. Warum lernen Sie Deutsch? डॉइच. वारुण Warum लर्न्स. lernen Sie वारुम लर्न्स डू. किसी ने जी बोला, किसी ने डू बोला, दोनों से करेक्ट हो सकता है, लेकिन एक एक करके बोल दो. वारुण लर्न्स. वारुण. lernen Sie Deutsch? ओके, Lernen वारुण जी Sie Deutsch? डॉइच. डॉइच. बिल्कुल सही. और डू वाला भी सही हो सकता है. बोलो. वारुम लर्न्स्ट डू डॉइच. Learns to Deutsch. Yes, formal or informal, it depends on us. Okay. Warum lernen Sie Deutsch? Warum lernst du Deutsch? Both are correct, equally correct. Okay.
मन, व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ मन? डेर मान, डेर मान, डेर मन, यस, डेर मन। आर्टिकल ऑफ मेडिसिन? दास मेडिसिन, डास मेडिसिन, 10 मेडिसिन। ओके, आपको पता है मन का प्लूरल मैनर होता है, उमलाउट और ईआर, मैनर, डी मैनर, डी मैनर। एंड कैनन और विशन, इन दोनों वर्ब का फर्क है पता? कैनन और विशन नहीं सर। दोनों का मतलब टू नो है, बट यू नो द डिफरेंस? ये पीपल और प्लेसेस के लिए होता है। कौन सा होता है पीपल और प्लेसेस के लिए? कैनन। परफेक्ट, वेरी नाइस। कैनन, विजन होता है फैक्ट के लिए। यस, परफेक्ट। सो फर्स्ट वाला वेरी गुड, पर्सन, प्लेसेस, कल्चर, सम सिटी, या उसके लिए सिटी भी प्लेस हो गया। सो कैनन टू नो, पर्सन, प्लेस, कल्चर, सिटी इनके लिए, और विजन फॉर फैक्ट, आई नो द कैपिटल ऑफ अमेरिका, सो इस वाइज अबाउट फैक्ट, कैनन और विजन। ओके, करेक्ट। नाउ सपोज हु नोज, ये सेंटेंस बनाना हो मुझे, कौन जाने? हु नोज, हु, नाउ विच डब्ल्यू वर्ड यू विल यूज? हु नोज। हु नोज, फैक्ट के बारे में एक सोच रहा हूं मैं, ये बात तो किसको पता होगी? हु नोज। सर व्हेन लगेगा, WEN। ओके, रीजन? सर अकुजाटिव है ना। बाकी लोग क्या कहते हैं? WER। WER लगेगा, और किसी ने व्हेन बोला। एक इनमें से सही है, बताओ कौन सा और क्यों? सर वेर लगेगा क्योंकि ये नॉमिनेटिव है ना। यस, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं आपका। अच्छा। अकुजाटिव और डाटिव तो पिक्चर में ही तब आता है जब कोई ऑब्जेक्ट हो, अच्छा, हाँ। राइट? ये आपने वर्ब तो देखा, लेकिन आगे तो कुछ है ही नहीं ऑब्जेक्ट तो जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो वेयर वाइस। वेयर वाइज। ओके, हाँ सर। ओके। नेक्स्ट मैं चेक करूंगा कि आपको काइन और निष्ठ का पता है क्या। काइन और निष्ठ, टेंशन मत लेना, जवाब दो। मुझे ऐसे लग रहा है कि 2-3 लोग ही जवाब दे रहे हैं। ओके, निष्ठ या काइन में से क्या आएगा? आई डोंट हैव एनी आइडिया, आई डोंट हैव एनी आइडिया, नो आइडिया। काइन अनु, काइन आएगा? नहीं आएगा सर। काइने, काइन वेरी गुड, परफेक्ट। काइन ईडे, काइने इडे, ich habe, काइन ईडे, ich habe keine, या फिर सर काइन अनु, परफेक्ट, काइने दोनों आनंद सही है, लिख सकते हैं सर। वेरी गुड। keine Keine Idee, Idee. keine Ahnung. Okay, Ahnung is more better. Okay, ich habe keine Ahnung. करेक्ट। अगर मान लो मैं बोलूं आई एम नॉट गोइंग, मुझे नहीं जाना, निष्ठ आएगा। निष्ठ आएगा? निष्ठ आएगा सर। हाँ निष्ठ आएगा सर। वर्ब बोलो। को डिनाई कर रहे हैं। हाँ, तो निष्ठ कब आएगा? क्या रीजन बताया? सर वर्ब को डिनाई कर रहे हैं ना। यस, एक्शन को डिनाई कर रहे हो आप। सो सेंटेंस भी बना के बताओ। सर ich bin nicht gehen, आई एम नॉट गोइंग में किसी ने इस्ट बिन लगा दिया, निष्ठ गेहन, ये इस सही है फारे क्या? निष्ठ, ich fahre nicht, सॉरी सर, सॉरी, इस फारे निष्ठ आएगा। ich बिन fahre की तो nicht जरूरत आएगा। नहीं है ना? नहीं, बिन की ना, जरूरत ना, नहीं है। ओके, इस फारे निष्ठ, इस गेहन निष्ठ। ओके, ich gehe nicht, और डिपेंड करता है आप पैदल जा रहे हो कि व्हीकल से जा रहे हो ना। इस फारे निष्ठ, इस गेहन निष्ठ। ओके, इस गेहन निष्ठ, ठीक है। मुझे बोलना है आई डू नॉट हैव द कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम लोग। आई डोंट हैव द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर मेरे पास नहीं है। आई डोंट हैव द कंप्यूटर, काइन या निष्ठ? निष्ठ आएगा सर। निष्ठ आएगा? कोई पर्टिकुलर डेफिनेट चीज की बात कर रहे हैं अपन। यस, अब सेंटेंस भी बना दो जरा। ich habe nicht den Computer. den Computer, Ich habe, ich habe nicht den Computer, okay, Den Computer. nicht
den कंप्यूटर। कंप्यूटर। फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो नेक्स्ट है आप den कंप्यूटर के बाद लगा सकते हैं। डेफिनेट स्पेसिफाई, कोई चीज को आप स्पेसिफाई करो तो उसके बाद नेक्स्ट लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस हार्वर्ड इन कंप्यूटर नेक्स्ट, बट नेक्स्ट भी आपने पहले लिखा तो टेंशन वाली बात है ही नहीं, मस्त सही है रहना क्या सर? ये, दिस इज परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। ओके, पजेसिव का देखते हैं थोड़ा सा कि आपको खुश होना चाहिए दोस्तों। आप ऑलरेडी आपको आइडिया भी होता है, एक्चुअली पढ़ते हैं तो हम लोग सब रोटी खाते हैं तो हमको पता है कि क्या सिखाया जा रहा है क्या नहीं सिखाया जा रहा। बट आपको खुशी होनी चाहिए कि A1 के बेस पे आप ये सब कर सकते हो, तमाम कॉन्सेप्ट वगैरह। दिस इज रियली गुड। केवल मेरे चक्कर में नहीं कि भाई मैं अच्छा सिखा रहा हूं, इसलिए भी कि आप अच्छे हैं, आप मेहनत कर रहे हो साथ साथ। ओके, नेक्स्ट वन पजेसिव का देखते हैं हम लोग। माई फादर इज हेल्पिंग माई डॉटर। ध्यान से सोच के बोलना है। माई, दोनों जगह माई है बट हो सकता है कुछ फर्क हो। माई माइन फादर, फाटर। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। My father is helping my daughter. माइन फाटर। Mir. हिल्फ्ट। Mindford. Helped Mir. हिल्फ्ट माइनर डॉटर, Mir. माइनर टॉटर। Mir. Minor टॉटर। doctor. डॉक्टर। डॉक्टर ख बोलते हैं ना, CH। हाँ। CH से पहले AOU आए तो ख। यू रिमेंबर दैट? ओके, हाँ सर। ओके, माइनर। ये माइनर क्यों किया आपने बताओ? द सेंटेंस इज करेक्ट बट व्हाई? सर हेल्फन अपनी डाटिव है। यस। डाटिव का आपको पता कैसे चलता है कि ये डाटिव है? देव जी है पास। ओके, देव जी है पास। ओके, इस फॉर्मूले से आपको पता चलता है। ओके, राइट। माइन फाटर हिल्फ्ट माइनर। देखो यहां भी माई है इंग्लिश के हिसाब से और यहां भी माई है, बट देयर इज डिफरेंस, हियर माइन एंड हियर माइनर, एंड यू अंडरस्टैंड दिस। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, नेक्स्ट वन। देयर देयर आंटी, आपकी बार ध्यान से देखना पड़ेगा। देयर आंटी इज their auntie is cooking food. Their auntie is cooking food. Their aunt is cooking food. Okay, try this. ईयर एट आंटे। Iere आंटे। tante कोक्ट। kocht दास एसन। das Essen. ये आपको पता है क्या कि यहां पे कैपिटल ही आएगा? सर क्योंकि नाउन है ना। यस, करेक्ट। नाउन है तो कैपिटल ही आएगा। पूरी जर्मन में कैपिटल आने की केवल दो रूल ही है। एक तो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, आप अगर सेंटेंस का स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट जो आपका बुकस्टाब है वो कैपिटल आएगा। उसके अलावा जहां भी नाउन आ जाए, मान लो यहां नाउन आ गया, यहां नाउन आ गया, एक सेंटेंस में 5 आ गए तो पांचों नाउन कैपिटल। सो नाउन कैपिटल और फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस कैपिटल। सर फुल स्टॉप और कॉमा का क्या रहता है? अगर कॉमा आ गया तो भी सेंटेंस वहां पे खत्म हो रहा है क्या? नहीं नहीं, खत्म नहीं हो रहा। फिर कोमा में तो जरा सा पोज ही हुआ ना, खत्म नहीं हुआ सेंटेंस। फिर फुल स्टॉप पे खत्म हुआ है सेंटेंस। ओके, वन और टू मोर सेंटेंस विद पॉजिटिव एंड देन आई विल टेक समथिंग एल्स। सी इज विजिटिंग मी। सी इज विजिटिंग मी। जी बेजुक्ट। Sir, Sie besucht. जितेंद्र आप बोलो। जी, Sie besucht जितेंद्र Mir. आप जवाब देना। जी जी बीजू Besucht. मिश। मिश। मिस Miss. मिस जितेंद्र मेयर क्यों नहीं आया?
सेंटेंस इज करेक्ट, बट मियर क्यों नहीं आया जितेंद्र? एक्जेटिव है ना, इसलिए है मिस। वेरी गुड, एडजेक्टिव होता तो मियर आता। करेक्ट। जी बेजुक्ट मिश। ओके, अगर सेंटेंस हो आई लव हर, आई लव हर, फिर क्या आता? Ich ओके, अब liebe, पवन जवाब देगा, पवन जवाब देगा प्लीज। पवन, पाटीदार भी हो liebe. सकता है और के भी हो सकता है। यस, आई लव हर। Ich liebe इश लीब, ear. ईयर बोला है तुमने, ईयर और कोई इसको करेक्ट करेगा? सर जी आएगा, सर इस लीब ईयर जी और ईयर जी आएगा सर। क्यों आएगा जी? बिल्कुल करेक्ट है आंसर, तो जी आएगा, लेकिन रीजन बताओ। Accusative verb, आकुजाटिव वर्ब है तो आकुजाटिव, बिकॉज आप पर्सनल प्रोनाउन टेबल देखते हो, इश मिश मियर डू डिश डियर, ऐसे ही फिर जी जी ईयर। आप यहां पहुंच गए, आप यहां पहुंच गए, आपको पहुंचना यहां था, और जो जिसने ये ईयर किया है ना, वो एक्चुअली मन ही मन में सोच रहा है मैं यहां पहुंचा ही नहीं सर, आप जबरदस्ती यहां पहुंचा रहे हो। मैं तो वो सोच रहा था हर वाला, हर मदर, Yes, sir. पॉजिटिव सोच रहा था हर के लिए, वो पॉजिटिव नहीं। यहां पे देखो, पॉजिटिव और पर्सनल प्रोनाउन कहां आता है, ये भी एक अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है, इसको भी रिकॉग्नाइज करना। यहां पे सेम पर्सन ने मिस्टेक करी है जिसने पहले भी करी थी, आई नो दैट। मैंने आपको ये बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन में डायरेक्ट बात उस पर्सन पे जाती है, जैसे आई लव हर, तो सीधा उस पे गई ना बात पर्सनल प्रोनाउन में। और अगर आप पॉजिटिव यूज करते हो तो उस पे नहीं, उससे रिलेटेड किसी और चीज पे, जैसे आई लव हर सिस्टर, तो हर सिस्टर तो हर नहीं है ना, वो खुद नहीं है ना सिस्टर। आई लव हर सिस्टर, तो उससे रिलेशन है सिस्टर का। आई से आई लव हर कार, तो कार तो हर नहीं है ना, बीच में पोजीशन आया। तो पोजीशन में और पर्सनल प्रोनाउन में ये डिफरेंस है, पर्सनल प्रोनाउन में डायरेक्ट उस पर्सन पे बात जाती है। आई हेल्प यू, इस हेल्प है डियर, सीधा तुम पे आ गई बात। अगर मैं बोलूं आई हेल्प योर फादर, तो आपकी बात तुम पे नहीं आई, तुमसे रिलेशन है किसी का, उस पे गई बात। इस हेल्प है डायनम फाटर। ठीक है पवन, समझ आया ये क्या मिस्टेक हुई? Okay, sir. आ गया सर. ओके करेक्ट, गुड, यस। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट हमने काइंडनेस चेक कर लिया, पोजेसिव, देन प्रीपोजिशन। वेट, प्रीपोजिशन का एक बार चेक करते हैं। यस, प्रीपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन आपने अगर ठीक ठीक बताई, बिकॉज हमने 25-26 प्रीपोजिशन सीख रखी हैं इवन में, आपने अगर ये ठीक बताया तो मेरे को पूरा फिर कॉन्फिडेंस है, फिर मैं कल ही A2 शुरू कर सकता हूं। ओके, इसके चक्कर में गलत मत करना कि भाई कल A2 नहीं शुरू कर दे। ओके, आपको अगर और चाहिएगा थोड़ा टाइम तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। ओके, जस्ट ट्राई। आई एम कमिंग विद माई friend, I am coming with my friend. Ich komme mit meinem Freund. Ich komme mit meinem Freund. Perfect. Ich komme mit meinem Freund. Ich komme mit meinem Freund. Okay, next one. My friend is at doctor's place. मतलब मेरा जो दोस्त है वो डॉक्टर के यहां है, डॉक्टर के यहां। Mein Freund By ist them asked. bei dem Arzt. Perfect. Ist by them arts. वेरी गुड। कौन सा रूल लगा यहाँ पे बाई का? बाई के तो कई रूल है। Professional establishment. परफेक्ट, प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट वाला रूल लग गया। Mein Freund ist bei dem Arzt. Okay,
सेंटेंस बनाओ, द डॉक्टर इज सिक टुडे, डॉक्टर खुद बीमार है आज, डॉक्टर तो बीमार है आज। इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लग रही है, किंग लगा दो आप, नॉर्मल सेंटेंस है। Das Arzt ओके बोलो। ist krank. Das Arzt heute, sorry, ओके, टेक योर टाइम। Heute der Arzt ist krank. लिख देता हूं मैं, आप खुद देखना कोई मिस्टेक हुई है तो। दोबारा बोलो। heute Heute ist आएगा शायद। बोलो बोलो पूरा der सेंटेंस। Arzt ist krank. Der Arzt Der Arzt ist krank. क्रंक। ओके, एक मिस्टेक है इसमें, कौन बताएगा? सर सर वर्ब क्रंक सेकंड सेकंड पोजीशन प्लेस पे में आएगी। आएगी। यस, क्रंक। वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगी। दिस इज द गोल्डन रूल। heute ist der Arzt krank, दैट्स करेक्ट। ओके, अगर प्रीपोजिशन पे थे हम लोग, ये बीच में मैंने कुछ और ले लिया। प्रीपोजिशन आप ये बोलो, दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये तो प्लास्टिक का बना हुआ है। Der Aus Kuli आएगा। ist aus Plastik. परफेक्ट। der Kuli Kuli ist ist Der Kuli aus Plastik. ओके, der Kuli ist aus Plastik, aus प्रीपोजिशन, परफेक्ट। और भी aus के तो और भी रूल मतलब निकलते हैं, लेकिन यहां पे aus मींस मेड ऑफ। ओके, देन I am standing against you। अगेंस्ट यू का मतलब मेरा ये है कि दोनों एक दूसरे के सामने मुंह खड़ा, आमने सामने मुंह करके खड़े हैं हम लोग। आमने सामने का कॉन्टेक्स्ट है। Gegen आएगा। Gegenüber. Ich bin Gegen आएगा gegen. सर। ओके, गेगन बोल रहे हैं सारे लोग। हाँ सर। Gegenüber. Ich bin गेगन यूबर gegen. आएगा इसमें, जब हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने अच्छा, खड़े ओके। हैं, लोकेशन की बात है, तो गेगन यूबर आएगा। और अगेंस्ट में मतलब आमने सामने खड़े नहीं है, जैसे चुनाव में मैं तेरे खिलाफ खड़ा हूं, देख लूंगा तेरे को, आई एम अगेंस्ट यू, देखता हूं कौन आता है, इस टाइप से। तो फिर आएगा गेगन। Gegen। ओके, ठीक है ना? हाँ सर। ओके, लोकेशन आमने सामने मतलब गेगन यूबर। ओके, देन सपोज आई से आई एम गोइंग इनटू द हाउस, घर के अंदर जा रहा हूं। आई एम गोइंग Ich इनटू द gehe हाउस। ich gehe nach Hause। Zum दोनों सेंटेंस लिखता हूं मैं, बोलो एक एक करके। इस गे है Nach Hause। एक तो अपना Nach Hause। नाक हाउस है, दूसरे ने क्या बोला? इस गे है, मुझे सुम बोला सुना था, सुम हाउस। ओके, सर इसमें इन भी तो आ सकता है। बोल के बोलो, आ नहीं सकता, आप बोलो सेंटेंस, आपको बोलना है ना, फिर डिस्कस करेंगे। इश गे है In House। इन हाउस। ओके, और कोई ऑप्शन सर- दिमाग में आ सर रहा है? सुम हाउस आएगा ऊपर। नाक आएगा, सुन यहाँ पे- जाएगा। यहाँ पे सुम इस गे हाउजे नाक करना हाउस। चाहते हो तुम। सुम हाउजे नाक- करना चाहते हो। नहीं नाक सर, ही आएगा। नीचे जो नाक सुम ही है आएगा सर। उसके आगे हाउसे के ई लगेगा सर आगे। अच्छा, यहाँ पे ई लगाना चाह रहे हो आप? हाँ, मेरा तो ओके। सर नाक ही है। ओके ओके ओके, यहाँ पे आपने जब इन किया किसी ने, तो और भी कोई पॉसिबिलिटी लग रही है क्या आपको? ये इन आपने आकुजाटिव किया कि डाटिव? सपोज मैं ये पूछूं, क्योंकि इन तो वेक्सल प्रीपोजिशन है, इन तो आकुजाटिव भी ले सकती है, डाटिव भी। आपने जिसने इन किया है वो यहाँ पे आकुजाटिव समझ रहा है या इसको डाटिव? पहले तो ये बताओ। वेक्सल है ना। अगर सर कोई डाटिव समझ रहा है तो मूवमेंट हो रही है इसमें, तो डाटिव लगेगा। मूवमेंट में डाटिव लगता है क्या? या सर सर दाटिव में वो तो आकुदाटिव लगता है। मोमेंट में आकुजेटिव। आपकी बार मूवमेंट में मोमेंट में accusative accusative तो लगता है, accusative कोई है तो लगता है। डाटिव लगेगा। आकुजेटिव Moment सारे- तो accusative लगता है। लगता है सारे ऊंट पहाड़ के नीचे आ गए। आकुजाटिव होगा ऑफ कोर्स। देखो, आपको मैंने बताया था कि एक तो मोशन देखते हैं हम लोग फ्रॉम प्लेस ए टू बी, है ना, और या सर उसके अलावा कोई अगर बाउंड्री के अंदर ही काम हो रहा हो तो डाटिव होता है, लेकिन
ए टू बी अपन कहीं जा रहे हैं, मोशन है, तो अकुजाटिव आना चाहिए। तो इश्क गे है इन दस हाउस, ठीक है। पहले तो ये बताऊं आपको, जिसको हम लोग जनरली देखते हैं इंस, इन दास को इंस भी कहते हैं हम लोग शॉर्ट में, राइट। सो इस गे है इन दस हाउस, ये एक तो सेंटेंस सही हो गया। दूसरे पे आते हैं, जब आप बोलते हो इस गे है नाक हाउस है, इसका मतलब ये होता है कि मैं मेरे घर जा रहा हूं। नाक हाउस जब आता है तो ऑटोमेटिकली ये सेंस निकलता है कि खुद के घर जाना। लेकिन मैंने तो बोला कि मैं घर में जा रहा हूं, इस घर में जा रहा हूं, अंदर। इसका मतलब जरूरी नहीं है मेरा है। जब मैं बोलता हूं कि मैं इस घर में जा रहा हूं, तो इसका मतलब केवल इतना निकलता है, आई एम जस्ट स्टेपिंग इनटू, मैं उसके अंदर, मतलब बाहर से अंदर। किसी का भी घर हो सकता है, आपको बोलूं कि रुको, इसमें कोई लोग छुपे हुए हैं, आप यहीं रुको, मैं अंदर जा रहा हूं, तुम तैयार रहना, लेकिन कुछ हो तो। सो ये बात तो हुई उसके अंदर जाने की। नाक हाउजे का मतलब है अपने खुद के घर, चाहे वो घर कहीं हो। आप कहते हो भाई मैं घर जा रहा हूं, तो इसके लिए आएगा नाक हाउजे। और आपने अभी एक क्वेश्चन उठाया कि हाउस या हाउस है, ये भी आपको समझने की बात है। जनरली नाक और सू के साथ हाउस है लिखते हैं जर्मन्स। नाक और सू, इन दोनों के साथ आप देखोगे हाउस है, दोनों के साथ हाउस है, ई लगता ही है, आप नोटिस करना कहीं भी। लेकिन हाउस अगर नाक और सू नहीं आए तो हाउस, और यहां पे सुम लगाने की जरूरत नहीं है। नाक हाउजे सू हाउजे, इसमें आर्टिकल भी नहीं लगता, ये फिक्स एक्सप्रेशन की तरह काम में आते हैं, इसलिए नाक हाउजे। ऐसे नहीं बोलते नाक होल दो, इट इज डाटिव, लेकिन आपको फिक्स एक्सप्रेशन सिखाया था। डाटिव आपको जब प्रीपोजिशन सिखाई तो आप याद करोगे, वापस देखना उसमें सारे रूल्स में, नाक के साथ नाक हाउजे ही लिखा था उसमें हमने, और सू के साथ सू हाउजे ही लिखा था। ऐसे भी कई चीजें हैं इंटरेस्टिंग एक्चुअली, कि जहां पे जनरली जर्मन्स आर वेरी मींस पॉजिटिव इस मामले में, कि वो आर्टिकल लगाते ही लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रीपोजिशन है जहां पे वो आर्टिकल नहीं लगाते, ऐसे फिक्स एक्सप्रेशन है, ये मान लो। जैसे मैं जानबूझ के अभी बोला नहीं था, जब आपने बोला डेर कुली इस्ट आउस प्लास्टिक, तो प्लास्टिक तो दी प्लास्टिक होती है, तो जनरली आउस डेर प्लास्टिक होना चाहिए, लेकिन जर्मन्स नहीं लगाते। आउस के कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज किसी की बनी हुई है, उसमें जनरली आर्टिकल नहीं लगता। ऐसे ही नाक हाउस है, सू हाउस है, इसमें आर्टिकल नहीं लगता। ओके, ऐसे ही अब जैसे बोलते हैं ना हम लोग फ्रॉम ऑनवर्ड्स, मंडे से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, नया बैच मंडे से। सो अब तो डाटिव है, सो अब डेम मोन्टाग बोल सकते हैं हालांकि, लेकिन जर्मन्स नहीं लगाते, वो कहते हैं अब मोन्टाग सीधाई। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल चीजें होती हैं। खैर A1 में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, ये भी एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, इंस हाउस या सुम हाउस दोनों ही करेक्ट है ग्रामेटिकली। ओके, जनरली आपको हालांकि यही दिखेगा, इंस हाउस ही दिखेगा जनरली आपको। लेकिन सुम हाउस, जैसे मान लो आप ऑन द वे हो, फॉर एग्जाम्पल आप ऑन द वे हो और जा ही रहे हो अभी, तो ये सेंस निकलता है कि यू आर गोइंग टू स्टेप इन। अब कोई कहे कि मैं एकदम घर के पास नहीं हूं, थोड़ा दूर हूं, तो भी निकल तो चुके हो ना वहां के लिए, तो हम लोग इंस यूज करते हैं, उसमें इन यूज करते हैं प्रीपोजिशन। सुम जनरली हम लोग तब यूज करते हैं जब आप आराम से घर पे बैठे हो और किसी को मान लो अपना प्लान बता रहे हो कि मैं पहले यहां से निकलूंगा और फिर घर जाऊंगा, फिर यूनिवर्सिटी जाऊंगा। तो वही बात है कि आप घर से अभी निकले नहीं हो, केवल अपनी बातें बता रहे हो, या फिर अभी ऑन द वे नहीं हो, आप ये समझ लो इसको। ये वैसे ही है जैसे आप बोलते हो इस गेहे इंदी ऊनी, इस गेहे सुअर ऊनी। इंदी ऊनी वही सेम रूल है कि जब घर से निकल चुके हो आप, रास्ते में कोई पूछे कहां, यूनिवर्सिटी जा रहा हूं, इस गेहे इंदी ऊनी। बट आप मान लो अपना प्लान बता रहे हो कि आज मैं पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर यूनिवर्सिटी जाऊंगा, तो अभी आप निकले तो हो नहीं, तो आप बोलोगे इस गेहे सुअर ऊनी। ठीक है, सर सू अपने घर पे रहने के लिए भी तो आता है ना? क्या घर पे है, घर पे रहने के लिए भी तो सू आता है ना? यही तो सू है हाउस। वो, यही तो है हाँ। वो। तुम पहले से घर पे हो, हाँ। आप पहले से घर पे हो, तो हम्म, कोई पूछे कहां हो, घर पे हूं, इस बिन सु हाउस है, हम्म, इसका मतलब आप पहले से घर पे हो। और नाक हाउजे का मतलब है आप जा रहे हैं या फिर घर आ रहे हैं। इसको में नाक ठीक। हाउस है, इस गेहे नाक हाउस है। आने जाने मतलब मोशन वाली बात हो तो वहां पे नाक आता है, पहले से और वहां सर हो। इन यूज होगा जब अपन जस्ट जा ही रहे, या किस सेंस में?
सर इनका समझ नहीं आ रहा सर। इनका, ओके, इनका मतलब आपको ये नहीं समझ में आ रहा क्या कि इन कब यूज होगा, या फिर इन समझ में नहीं आ रहा? नहीं सर, इन कब यूज होगा? इन कब यूज होगा, ओके, वेट। इन या सुम, इन वर्सेस सुम, ऐसे ले लेते हैं इसको। इन हम लोग यूज करेंगे, ये यहां पे घर है सपोज कोई, ठीक है, ये कोई घर है और आप यहां पे हो और आप कह रहे हो कि मैं घर के अंदर जा रहा हूं। इनटू, इनटू का जब सेंस देते हैं, गोइंग इनटू, घर के अंदर जा रहा हूं, तो अभी तो घर में नहीं हो ना आप तो घर में जा रहे हो, तो इसमें मोशन हो रहा है फ्रॉम दिस प्लेस ए टू दिस प्लेस टू, यू आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, मोशन है। हाँ सर। सो इन आएगा इसमें, इस गे है, इश गे है, इन दस हाउस। तो जब मोशन है तो इन प्रीपोजिशन, इन का मतलब ये टू वे प्रीपोजिशन है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता है भी। टू वे, टू वे का मतलब वेक्सल, जर्मन में वेक्सल बोलते हैं। वेक्सल टू वे का मतलब हो गया कि सेम प्रीपोजिशन आकुजाटिव भी हो सकती है और सेम प्रीपोजिशन डाटिव भी हो सकती है। ओके, जब मोशन है फ्रॉम प्लेस वन टू प्लेस टू, तो आकुजाटिव लेते हैं हम लोग। तो इन दस, आपका आर्टिकल डेर दी, दस दी, डेन दी, दस दी, ये न्यूट्रल है, ये पता है आपको, दास हाउस न्यूट्रल है। हाँ सर। तो इन दास या आकुजाटिव वाला ले रहे हैं हम लोग। इनका मतलब इन इसलिए आ रही है क्योंकि इसका मतलब इन है, इनके दो ही तो मतलब है, इनका मतलब इन है और इनका मतलब इनटू है। तो इनटू का मतलब स्टेप इन, आप अभी नहीं और उसमें जा रहे हो। और सर डाटिव इसका इश बिन इन इन दास हाउस, इन डैम हाउस। इन डेम हाउस, बिकॉज हाँ। डाटिव तो फिर नीचे वाला लिखना पड़ेगा, डेम, डेयर, डेम, डेन डेन प्लस हाउस। एन, ये आपका न्यूट्रल में, फिर आप यहां पहुंच जाओगे। इस बिन इन डेम हाउस, आप ऑलरेडी वहां पे हो, जा थोड़ी रहे हो। हाँ सर। इश बिन इन डेम हाउस, सर कई बार इन डेम की जगह इम का भी यूज करते हैं। इन इन डेम की जगह, नहीं सर, इम, जैसे हाँ, हाउस के पास में इम। यस ऑफ कोर्स, इन डेम को ही इम बोलते हैं। जैसे ये शॉर्टकट्स आपको ध्यान होंगे मेरे ख्याल से, इन प्लस दास, इंस, इन प्लस डेम को ही हम लोग इम लिख देते हैं। सु प्लस डेम सुम, सुम, सु प्लस डेयर सुअर। सुअर, ये सुअर वो सुअर नहीं है। ओके, इसके अलावा याद करो, और शॉर्टकट्स, बाई प्लस डेम, बाई बाई। प्लस डेम, बाइम, बाइम, लिख तो आउफ प्लस दास को आउफ्स भी लिख सकते हैं, बट इतना फ्रिक्वेंटली नहीं देखते आप उसको। ऑन प्लस Okay? डैम, हाँ, ऑन प्लस डैम, उन डेम तो नहीं करते, ऑन प्लस डैम, ऑन प्लस डैम, ऑन, ऑन प्लस ऑन डेम, प्लस डैम, आम। ऑन, ऑन प्लस डेम इज आम, होने को तो On उम plus प्लस dem. दास उम्स भी कह सकते हैं। ओके, ऑन प्लस डैम, उन प्लस डेम कैसे हो सकता है? उन तो आकु, उम जो बोल रहे हो आप, आकुजाटिव नहीं है क्या? नहीं बोल पोजीशन, रहा मैं, नहीं बोल रहा सर, फोन फोन, फोन प्लस ऑन डैम। प्लस डैम, फॉर्म। ऑल राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। ओके, मुझे सही सुना नहीं था। फोन प्लस डेम, यस, इसको आप फोन बोल सकते हो, दैट्स करेक्ट। ओके, सो ये आपका मैंने टेस्ट तो ले लिया, अब अपन प्रीपोजिशन सीख लेते हैं, लास्ट टॉपिक जो था अपना। सर एक बार सुम का भी बता दो। सुम, या इनका आपने बता दिया था, सुम का भी एक बार क्लियर कर दो सर। सुम देखो, इन का मतलब आप ये समझ लो, यू आर गोइंग इन टू, इन टू इनटू, मतलब ठीक है।
आप हो नहीं और घर में जा रहे हो, ठीक है? तो हाँ एक तरह सर। से ये समझ लो आप घर के आसपास ही हो या फिर ऑन द वे हो, ऑन द वे, ठीक है सर। या हो सकता है उसके सामने ही हो और आप कह रहे हो कि आई एम जस्ट गोइंग इनटू। इनटू। तो घर के सामने या तो यहां पे हो आप कहीं, या फिर यहां भी हो तो रास्ते में हो, निकल चुके हो उसके लिए। हाँ मीन्स तो एक्शन हो ही रहा है उसके लिए। हाँ, मतलब आप चल पड़े हो, आप अंदर जाओगे बस अब, हाँ राइट? माइंडसेट ठीक है। है आपका, आप या तो उसके सामने पहुंच गए हो या फिर कहीं रास्ते में हो लेकिन जा वहीं रहे हो, तब तो हम यूज करेंगे इन। और सुम हम यूज करेंगे नॉर्मली, जैसे आप डे टू डे लाइफ में बात करते हो कि आज मेरे को पहले ये करना है फिर ये करना है, मतलब आप अभी निकले नहीं हो, आपके दिमाग में है कि ये सब आप करेंगे लेकिन निकले नहीं हो आप, तो उसको कह रहे हो यार आज तो बहुत काम है। Ich muss kochen, dann muss ich ein bisschen lernen, dann gehe ich zur Uni, okay? Ja, es gibt viel zu tun. तो जब आप निकल चुके हो तब तो आप यूज करोगे इन, ऑन द वे हो तो इन, और जब घर आप बैठे बैठे सोच रहे तो सू यूज घर होगा। बैठे सोच रहे हो या फिर आज नहीं किसी और दिन जाना है और आज ही सोच रहे हो वहां भी जाना है, तो अभी निकले थोड़ी हो, हाँ हाँ तो फिर सू। ठीक है सर। अच्छा सर, मान लीजिए अगर हम ही घर बैठ के ये कह रहे हैं कि कल मुझे जर्मन जाना है, तो इस फार सुर डॉइचलैंड। ना 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 ना, जर्मनी जाना है तो फिर सोचो आप कौन सी प्रीपोजिशन है। नाक होगी सर फिर तो तो। ना खाना चाहिए ना वैसे तो। आउट ऑफ द सिटी जा रहे हो आप तो हाँ फिर तो ना खाएगा, नहीं तो फिर सर सुर का होगा, जैसे कहाँ नहीं आ आएगा सकता। प्रॉपर। जब आउट ऑफ द सिटी कहीं भी जा रहे हो, आप जर्मनी जा रहे हो, आप लखनऊ जा रहे हो, जयपुर में हो आप, तब तो सू आ ही नहीं सकता ना, फिर तो ना खाएगा, ठीक है? वो तो हाँ। स्पेसिफाई है, वो तो 3 चीजों के लिए, कंट्री सिटी स्टेट के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल स्पेसिफाइड पहले से ही। ओके, अब हम अपना लास्ट टॉपिक ले लेते हैं। आई एम हैप्पी, मुझे खुशी है आप A1 में ये सब कर पा रहे हो।